on your stop store. ओके स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग लास्ट में कोई प्रॉब्लम कर रहे थे विच हैड टू बी सॉल्व्ड। सर वो एक लेवल्स वाली बात आपने कहा था कि आज आप सारी क्लास के साथ करेंगे। हाँ करेक्ट, या ठीक है। एक चीज मैं ये कह रहा था, कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो अगर हम एक्सेलरेटेड, तो पहले बेसिकली क्विक रिवाइंड, अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में है या हमारा लिक्विड एक्सेलरेटेड है, विच इज द सेम थिंग, वी कैन बी इन द फ्रेम ऑफ द लिक्विड by applying pseudo forces, then the approach is to basically take that acceleration, cancel it out, put it in the reverse direction, and then it basically behaves like a kind of gravity. ठीक है, then you can find the effective gravity, and then you can basically consider that that is the real gravity, and so the surface of the liquid will assume a shape perpendicular to the effective gravity of the frame. And you can also think of it as components. So if you have an acceleration a in the horizontal direction and a real gravity g in the vertical direction, and you're moving through the fluid, then any vertical displacement will basically see an increase of pressure due to g, so rho gh like this, and any horizontal displacement in the direction of a will see an increase in pressure rho al. So rho al horizontally is the same thing as rho gh vertically, right? फिर मैंने YouTube वाला एक प्रॉब्लम दिया था जिसमें 2 लिक्विड थे, लेकिन उससे पहले मैं ये एक चीज कहना चाह रहा था कि एक लिक्विड यदि है, मान लो ऐसे करके, केवल सिंगुलर लिक्विड है इसमें, और रियल ग्रेविटी नीचे है, बट इफ लेट्स से दिस स्टार्ट्स टू मूव टू दिस साइड एट some acceleration, then like I said, you cancel this out, you put it on this side, and you know that the liquid surface must now become like this because effective gravity थोड़ा इस डायरेक्शन में हो गया। तो जब ये चल रहा होगा, मतलब जब ये तुम इस पे ये सूडो ग्रेविटी लगा दोगे, तो जो दोनों ट्यूब में लेवल का डिफरेंस है वो एसेंशियली वही एंगल पर है जो एंगल थीटा हमको a बाई जी करके मिलता है। मतलब अगर अब प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द डिफरेंस इन दी हाइट्स of the liquid in the two arms, then that can be easily found because tan theta is a by g, and if you know the width, the bottom length, then you can find the difference in heights. This is directly the difference in heights. So my point is that the liquid has basically assumed the same shape as if it's not simply two vertical arms, but the entire container is filled with liquid. And in fact, this is true no matter how many vertical arms there are. Even if you have a bunch of these, the liquid will still assume the same shape. So you can actually figure out कि individual arms में क्या levels होंगे, because they must all basically lie along the same slope. ठीक है, it is that same slope formed by tan theta equals to a by g. This is an important thing to understand. I'll be utilizing this fact later on also when we talk about the rotating frame. But the reason this is the same thing as a total container filled with liquid with no vertical arms, just the entire container, is a conceptual thing to understand. जब लिक्विड, अगर तुम एक सिंपल कंटेनर ले लो जिसमें लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिंपली लिक्विड इज फिल्ड, वर्सेस यू कंसिडर अ कंटेनर
जिसमें मान लो कि ऐसा शेप है, ठीक है, ऐसा शेप है लेट्स से, तो लिक्विड यहां तक फिल्ड है। अब अगर ये जो शेप यहाँ पे, अगर तुम इसको इमेजिन करो कि मैंने बना लिया यहाँ पर इस लिक्विड में, जिसमें एक्चुअली पूरा का पूरा लिक्विड है, आई मीन इसके अंदर लिक्विड है, इधर कुछ नहीं है, खाली जगह है, लेकिन अगर ये शेप अज्यूम भी कर लिया जाए तो क्योंकि प्रेशर डेप्थ का फंक्शन है, दोनों में सेम पानी का लेवल है, तो जो फोर्सेस ये पानी इस पानी को लगा रहा होगा, वही सेम सेट ऑफ फोर्सेस ये पानी इस वर्टिकल ग्लास वॉल को लगा रहा होगा। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? यस सर। In fact, I can generalize to an even stronger statement. I can say कि अगर मेरा कंटेनर में एक वियर्ड सा कैविटी होता और पानी ऐसे और ऐसे फिल्ड होता, तो इस पानी का जो एक्चुअल पानी है इसमें, उसका एक्सपीरियंस जो होता, उसको जैसा लग रहा होता, would have been no different from being in a connected body of water. Do you guys understand? यस। Because you could very well imagine कि यहाँ पे भी वैसा एक शेप हम इमेजिन कर दें जिसमें एक्चुअली पानी है, और जो सेट ऑफ फोर्सेस वो पानी इस बॉडी पे लगा रहा है, या बाय न्यूटन्स लॉ जो सेट ऑफ फोर्सेस वो शेप इस बाहर के पानी पे लगा रहा है, वही सेट ऑफ फोर्सेस ये ग्लास का कंटेनर का शेप इस पानी पे लगा रहा है। अब पानी तो पानी को प्रेस कर रहा है या पानी कंटेनर को प्रेस कर रहा है, वो तो एक ब्लाइंड मॉलिक्यूल है, उसको तो पता नहीं कि इधर क्या चीज है, उसको तो केवल फोर्स आ रही है। तो क्या वो फोर्स पानी से आ रही है या वो कंटेनर के वॉल से आ रही है, वो ये इररिलेवेंट बात है। मेक सेंस? एंड देयरफॉर this situation is no different from this situation, because in any of the arms, the water pressing against the wall of the tube, it has the same experience of life, I guess, as the water in the connected body, because उसके बाजू में पानी को प्रेस कर रहा होता या कैपिलरी के वॉल को प्रेस कर रहा होता, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। That's why we are able to look at this drawing and make a connected line and say कि ये तो वही चीज है जो ये चीज है, तो मैं उससे इंडिविजुअली ट्यूब्स के लेवल फाइंड कर सकता हूँ। सर वॉल्यूम अलग होगा ना? नहीं, वॉल्यूम टोटलिटी में वॉल्यूम अलग है ऑफ कोर्स, इस पानी का टोटल वॉल्यूम इस पानी के टोटल वॉल्यूम से अलग है, इसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी है, लेकिन जो ये वाला पानी है, जो शेडेड पानी है, दोनों केसेस में जो शेडेड पानी है, उसका एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग देयर इज कंप्लीटली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इन द टू केसेस। सो बट वॉल्यूम पानी वाटर से प्रेशर लगने में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वही तो समझा रहा हूँ, दैट इज द पॉइंट। ये जो शेडेड पानी है दोनों एग्जांपल्स में, इसको जैसा लग रहा है, अगेन मैं लूज लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जैसा लग रहा है से मतलब है कि जो भी उसको सेट ऑफ फोर्सेस फील हो रहे हैं सब तरफ से, वो इस पानी और इस पानी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये पानी को नहीं पता है कि उधर पानी है कि उधर कंटेनर का वॉल्स है। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? And so what about the depth difference? डेप्थ डिफरेंस अज्यूम करके कि डेप्थ बराबर है तब इक्वल कह सकते हैं। यस यस। ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डेप्थ डिफरेंस है तो फिर तो प्रेशर्स डिफरेंस है, डिफरेंट है, फिर फोर्सेस डिफरेंट है। अगर डेप्थ सेम है, तुम एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लो और इसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में से कट करके कोई सब प्रोफाइल ले लो, ठीक है, मान लो कि सिलेंड्रिकल कंटेनर में से कट किया हुआ जिसका बॉटम सेम है लेट्स से, लेकिन ऐसा कुछ शेप तुमने कट आउट कर दिया जो इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर दोनों को सेम लेवल तक पानी से फिल कर दिया जाए, तो जो एक्चुअल पानी है, जो एक्चुअल वाटर है, उसका एक्सपीरियंस दोनों केसेस में कंप्लीटली आइडेंटिकल है। मतलब ये जो वियर्ड कंटेनर के अंदर पानी है, इसको जैसा लग रहा है, इसको ऐसे ही लग रहा है कि एक्चुअली ये सिलेंड्रिकल पानी के अंदर है। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। क्योंकि उस लेवल पे वही फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे अगर पानी होता इस शेप का, तो वो ऐसे ही प्रेसिंग कर रहा होता बाकी पानी को, जैसे कंटेनर के वॉल्स कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड, जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। फिर वो प्रॉब्लम हम कर रहे थे जिसमें एक्चुअली, लेकिन याद रखो ये तुम लॉजिक, ये tan थीटा a by g वाला लॉजिक तुम तभी करेक्टली लगा सकते हो यूट्यूब वाले प्रॉब्लम्स में, जब वो एक ही लिक्विड हो। अगर मल्टीपल लिक्विड्स हैं तो फिर ये tan थीटा a by g नहीं आएगा, क्योंकि अब इधर से अगर एक और डेंसर लिक्विड है तो वो थोड़ा सा फाइट बैक भी कर सकता है, जो डायरेक्टली किसी a by g से नहीं मिलेगा तुम्हें। देन यू हैव टू राइट द इक्वेशन लाइक आई टोल्ड यू। सर राइट वाले जो शेडेड डायग्राम था, जो अनइवन कैविटी डाला था, सर उसमें कैविटी की वॉल्स पे जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं उस पे प्रेशर अलग होगा ना? क्योंकि एक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दूसरे में दोनों साइड से लिक्विड प्रेशर लग रहा है। हाँ,
ऑफ कोर्स अगर तुम इस कंटेनर में बाहर से ग्लास वॉल से जो फोर्स, ग्लास वॉल पे जो बाहर से फोर्स लग रही है वो डिफरेंट है फ्रॉम व्हाटएवर इज हियर, लेकिन इधर की साइड से जो ग्लास को फोर्स लग रही है वो वही फोर्स है जो इधर की साइड से इस वाटर को लगती है, जो अनशेडेड वाटर। मतलब यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात चल रही है। यहाँ पे केवल वाटर की बात चल रही है, हम बेसिकली केवल वाटर के एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड है। तो वो उस सेंस में ये दोनों सिचुएशन कंप्लीटली इक्विवेलेंट है, ये दोनों सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन या ये और ये सिचुएशन कंप्लीटली इक्विवेलेंट है। इफ यू आर द वाटर in this case, then your experience is no different from being water in this case, or in this case, or in this case. अंडरस्टूड सर। ठीक है, ऑल राइट। सो वो प्रॉब्लम जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे वो करना है सॉल्व, या तुम लोगों ने कर लिया था एंड इट्स ऑल वेल एंड गुड विद द लिक्विड हेयर जिसमें एक्सेलरेशन भी था। आई थिंक मैंने इक्वेशंस तो उसका लिखा ही था समथिंग, एक इक्वेशन लिखा था एक अज्यूम करके और उससे शायद नेगेटिव आता है, एंड देन तुम लोगों ने मुझे बोला था कि वो नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम उसको थोड़ा सा वापस कर देंगे और फिर इक्वेशंस लिख लेंगे, राइट? सो इट्स नो बिग डील, आई गेस ऑल ऑफ यू कैन डू दैट। अब जो है हम लेंगे एक और एग्जांपल ऑफ एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सेलरेशन। नहीं सिद्धांत, डोंट अप्लाई द स्लोप लॉजिक इन मल्टीपल लिक्विड्स, जस्ट डोंट अप्लाई दिस इक्विवेलेंस फॉर मल्टीपल लिक्विड्स। ठीक है, मल्टीपल लिक्विड देखते ही you should simply go back to the equations that you know are correct, which is simply writing pressure and equating it. All right? And horizontal acceleration अगर है तो ये बात और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से आके और यहाँ से आके प्रेशर इक्वेट कर दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मीनिंग चेंज हो चुका है। You can't equate this pressure. So what you have to do is you have to pick one point now. Instead of picking 2 points and equating their pressure, you have to pick one point and equate its pressure via 2 different paths. ठीक है, if the system is horizontally accelerated, you should write pressure from one way and from the other way and then equate it to itself. Same point का खुद के साथ तो pressure हमेशा equate किया जा सकता है। Okay, let's look at a different kind of an accelerated frame. ठीक है, so another kind of a rotating frame is another kind of an accelerated frame is the rotating frame. A rotation is a common motion, we see it in life a lot. Liquids in rotating frames are a common enough phenomena. तुम कोई liquid, तुम अब वाइन लेके ऐसे ऐसे उसको कर रहे हो, चाय में शुगर डाल के ऐसे ऐसे कर रहे हो, that's a liquid in a rotating frame. Like the liquid is rotating, but if you want to go in the frame of the liquid, you will have to start rotating. कैमरा लगा दिया ऊपर से और कैमरा उसी रेट से घूम रहा है जिस रेट से चाय घूम रहा है, तो चाय स्टिल दिखेगा, लेकिन तुम अब रोटेटिंग फ्रेम में हो, राइट? या वॉशिंग मशीन चल रहा है, दैट्स अ लिक्विड इन अ रोटेटिंग फ्रेम. तो इट्स अ कॉमन अकरेंस इन लाइफ. मेनी डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्व अ लिक्विड इन अ रोटेटिंग फ्रेम, राइट? तो इसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसका एक सिंपल वर्जन लेता हूं, फिर हम इसको एक दूसरा तरीके से देखेंगे. तो लेट्स से आई हैव अ ट्यूब जिसका ये एंड ओपन है, ठीक है, and there is no gravity in this context. ठीक है, let's ignore gravity for now. तो अगर मैं इस ट्यूब में, और ये ओपन एंड है, अगर इस ट्यूब में मैं लिक्विड डाल दूं तो क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो ऐसा नहीं कि ये लिक्विड पोर करके बाहर गिर जाएगा ऑब्वियसली, तो वो जहां पर है वैसे ही बैठा रहेगा, सॉर्ट ऑफ फ्लोटिंग लिक्विड है. द ट्यूब इज जस्ट इंसिडेंटली ऑन द लिक्विड, करेक्ट? The liquid is not really pressing the bottom of the tube nor pressing the sides of the tube because it has no tendency to go anywhere and neither does the tube, right? So it's all just freely, जैसे स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट्स फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं, कभी ऐसे बम्प करते हैं कभी ऐसे बम्प करते हैं, वैसे इस ट्यूब के अंदर लिक्विड भी फ्री फ्लोटिंग होगा, कभी इधर प्रेस करेगा कभी इधर प्रेस करेगा कभी इधर प्रेस करेगा, but it's not unilaterally pressing in some direction. But if I now start to rotate this tube about this axis, let's say at some omega,
सर ट्यूब सील्ड है। ट्यूब सील्ड है, इधर से ओपन है, मान लो ओपन एंड है ये ट्यूब का, और बाहर जो है वैक्यूम है लेट्स से, या कुछ और भी हो सकता है, पी नॉट भी हो सकता है, या जनरल ले लो, मान लो बाहर जो प्रेशर है वो पी नॉट है, और ये क्लोज्ड एंड ऑफ द ट्यूब है, और लिक्विड इसमें इतना है कि वो यहां से चालू होता है लेट्स से, ठीक है, ये लिक्विड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू ऑल एबल टू इंट्यूटिवली सी दैट बाय रोटेटिंग द ट्यूब इन दिस मैनर I would cause the liquid to pile up in that direction? Yes, sir. एक तरीके से इसको भी समझने का वही तरीका है कि gravity is a very intuitive idea, right? So if any acceleration if your frame has any acceleration, then if you can think of that acceleration as a kind of gravity, then it helps you understand things very simply. पिछले केस में भी हमारा सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट कर रहा था, तो हमने कहा उसको हटा के इधर सूडो लगा दो, तो वही ग्रेविटी जैसा हो गया। तो रियल ग्रेविटी और वो ग्रेविटी से नेट ग्रेविटी आ गया, फिर हमने बस अपना मुंडी को घुमा लिया और बोला अच्छा ऐसे फिजिक्स हो रही है, राइट? तो यहाँ पे भी वो लॉजिक लगाया जा सकता है। अगर ये ट्यूब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है? व्हाट इन द करंट ड्राइंग, वेयर इज द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब और द लिक्विड और व्हाटएवर? Radially upwards. नहीं, रेडियली इनवर्ड्स। एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में चीजें जाते हैं तो उनका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, करेक्ट? तो अब अगर मुझे इसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम बनाना है, यानी मैं इसके फ्रेम में जाना चाहता हूं, तो मेरे को भी घूमना पड़ेगा, यानी मैं भी एक्सिस पे बैठ गया और ट्यूब के अंदर देख रहा हूं। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्यूब बार बार मेरे सामने से चला जाता है, तो मुझे भी उसी स्पीड से रोटेट करना पड़ेगा अपनी बॉडी के अबाउट जिस रेट से ट्यूब घूम रहा है स्पेस में। सो आई एम द रोटेटिंग फ्रेम, and since I am a rotating frame which is an accelerated frame, to analyze the tube or its contents I must apply a pseudo force, and the pseudo force acts in the direction opposite to the acceleration of the frame, correct? यानी जब मैं इस ट्यूब के अंदर देख रहा हूँगा तो पानी को एनालाइज करने के लिए जो सूडो लगेगी वो उस डायरेक्शन में लगेगी। तुम लोगों को समझ में आ गया? और वो जो सूडो लग रही है वही इस पानी को प्रेस कर रही है अगेंस्ट द क्लोज्ड एंड। इन दैट सेंस you can look at it like a kind of gravity, a gravity that has been created by the pseudo of rotation. सर स्क्रीन टेढ़ा हो गया। नहीं, मैंने इसको रोटेट किया है ग्रेविटी के डायरेक्शन में लाने के लिए इसको। ओके। जैसे तुम स्ट्रिंग पे स्टोन बांध के घुमा रहे हो, राइट? तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाता है क्योंकि स्टोन बाहर जाना चाहता है। तो स्टोन पे जो सूडो लग रही है विच इज द सूडो ऑफ रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल जिसको कहते हैं, जो सेंट्रीपीटल का सूडो है, सेंट्रीफ्यूगल जो सूडो लग रही है उसके कारण स्ट्रिंग में टेंशन आ गया है। तो अगर तुम स्ट्रिंग के साथ ही घूम रहे हो, यानी तुम्हें हमेशा स्टोन अपने सामने दिख रहा है और स्ट्रिंग टॉट दिख रही है, तो तुम्हें तो ऐसे ही लगेगा ना कि स्टोन एक्चुअली ग्रेविटी में लटका हुआ है और तुम नीचे की तरफ देख रहे हो। Yes, sir. तो वही चीज यहां पर हो रही है। एक तरीके से हम सूडो को ग्रेविटी की तरह, सिद्धांत में ये कह रहा हूं, अगर स्टोन तुमने लिया और स्ट्रिंग से बांधा और फिर तुमने उसको सर्कल में घुमाया, तो घुमाने के कारण इसमें टेंशन आ जाएगा, टॉट हो जाएगा स्ट्रिंग। मान लो तुम ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में कर रहे हो ये, ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ गया। हाउ डू यू एक्सप्लेन द टेंशन? बिकॉज द स्टोन इज एक्सपीरियंसिंग अ सूडो आउटवर्ड्स एंड द टेंशन अराइजेस टू स्टॉप द स्टोन फ्रॉम फ्लाइंग आउट। बट इफ यू आर ऑल्सो रोटेटिंग विद द थिंग, तुमने देखा है वो शॉर्टपुट कैसे फेंकते हैं वो लोग? शॉर्टपुट नहीं, क्या होता है वो, कुछ तो रहता है ना ऐसा, ओलंपिक्स में फेंकते हैं। Hammer. वो हेवी बॉल। हैमर थ्रो, हाँ हैमर कहते हैं उसको। तो वो लेते हैं और घुमाते हैं। तो अब अगर मैं उसको घुमा रहा हूँ, ऐसा अपना हाथ से पकड़ के नहीं घुमा रहा हूँ क्योंकि उसमें तो मैं नहीं घूम रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसको पकड़ के ऐसा ऐसा घुमा रहा हूँ तो मैं भी घूम रहा हूँ उसके साथ, मेरा भी वही ओमेगा है जो उसका ओमेगा है, तो मेरे सामने होता है ना हमेशा वो, मतलब आई सी द बॉल एट रेस्ट। ठीक है, दुनिया घूम रहा होगा, दुनिया को हटा दो, पेड़ वेड़ बाहर की बिल्डिंग हटा दो, आउटर स्पेस में, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं घूम रहा हूँ, बस मेरे को स्टोन दिखेगा मेरे सामने। तो मैं रोटेटिंग फ्रेम में आ गया, इसका मतलब मैं रोटेटिंग फ्रेम हूँ।
तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक रस्सी है जिसपे पत्थर है और बहुत टाइट है क्योंकि मेरे हाथ को खींच रहा है। तो मेरे को ऐसा लग सकता है ना कि एक्चुअली जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैंने इस पत्थर धरती पे लटका हुआ है अंडर ग्रेविटी और मैं उसको गिरने से रोक रहा हूँ। मतलब दी सूडो कैन बी थॉट ऑफ लाइक ग्रेविटी। वही मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ, ये जो घुमाने से सूडो जनरेट हो रही है, जो पानी को पुश कर रही है अगेंस्ट द क्लोज्ड एंड, कैन बी थॉट ऑफ एज अ ग्रेविटी। यू जस्ट नीड टू रीओरिएंट योर सेंसेस। ठीक है, तो अब जो है in fact I don't know if you guys are read science fiction or have you, if you have watched those kind of space type movies जो होते हैं वो 2001 space odyssey type के जो movies होते हैं, where they show कि future में जब हम interstellar travel करेंगे, intergalactic travel करेंगे, जहाँ पे हमें long term space में रहना होगा। अभी तो ये है कि तुम जो लोग जाते हैं वो 3-4 महीने जाते हैं, 6 महीने जाते हैं, so that's not a long enough period. What happens is if you live in that no gravity environment for too long, then a lot of things will actually get screwed up for you. First of all, your bones uh, 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 are basically designed to take compression. So when you're walking around, you're actually compressed, right? And the bones are designed for that. So when you go in space for 3-4 months and you're not under compression, your bones kind of are not working properly. Your muscles are not working properly. They become weak. Bone density decreases. Muscles become weaker. They are not able to do that thing properly, the compression and stretching. And so when you come back to Earth, then you have a lot of trouble. Once they come out of the spacecraft, there are people around to help them walk to the car, and then even after that, for a few weeks, for like 8-10 weeks, they have to go to the swimming pool every day and sit in it for like 8-10 hours, because they are sort of gradually getting used to the pull of the earth. From being no pull to some pull, the water is like a buffer, so it reduces your weight and everything. So imagine कि तुम इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल जब करने लगोगे, यहाँ से जुपिटर जाओगे तो तुम्हें उसमें सालों लग जाएंगे, तो उतना टाइम के लिए तो कोई नहीं रह सकता है बिना ग्रेविटी के. प्लस योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एवरीथिंग इज डिजाइन टू यूज ग्रेविटी टू हेल्प थिंग्स गो डाउन एंड स्टफ, right? In the absence of gravity, all of those systems would have a lot of trouble working properly. So there are proposals, serious proposals also, but mostly in like sci-fi movies, that they have a cylindrical spacecraft, or at least like a cylindrical module of a spacecraft. अब देखो, तुम्हें सूडो ग्रेविटी क्रिएट करनी है, तो वन वे वुड बी कि स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक तरफ एक्सेलरेट करे जी से, तो फिर हम इस तरफ पुश हो जाएंगे, और फिर बेसिकली पहले तो हम गिर जाएंगे, मैं कह रहा हूँ गिर जाएंगे, बट रियली स्पेसक्राफ्ट का वॉल आके ठोक देगा मेरे को साइड से, राइट? लेकिन अंदर एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि मैं नीचे गिर गया धड़ाम से, और फिर मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, और जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसे खड़ा हूँ. लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकल नहीं है. तुम्हें अगर तुम सीधे एक्सेलरेट करने वाले हो तो तुम्हें हर वक्त ही एक्सेलरेट करते हुए जाना है, तो स्पेसक्राफ्ट पता नहीं कहाँ चली जाएगी. just so you can have the benefits of gravity, the spacecraft has to accelerate in some direction. Instead, a better approach it, have like a cylindrical module, possibly a very large cylindrical module, which is constantly rotating on its axis. इसके जो सूडो फोर्सेस हैं, इसका जो सूडो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है, इसका जो सूडो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन हर जगह अंदर की तरफ है, तो जो ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है वो रेडियली आउटवर्ड्स है, तो लोग इसमें ऐसे चल रहे होंगे, लाइक यू कुड वॉक. की वजह से घूम नहीं रहे होंगे वो लोग. नहीं, घूम नहीं रहे होंगे, उसके रिलेटिव रेस्ट पर होंगे ना वो. तुम तो धरती पे हो, घूम रहे हो क्या? धरती भी तो घूम रही है. नहीं, बट लाइक इफ इट इज रोटेटिंग, सो फ्रिक्शन जो उनके पैर और उसके बीच में होगा, वो एक बार आ गया होगा ना, जब तुम चढ़े होगे इस पे धरती पे, तब ये घूम नहीं रहा होगा, तुम बैठ गए होगे इसमें, फिर ये धीरे धीरे उस रोटेशन पे आ गया होगा, तो तुम भी उसके साथ आ गए. रिलेटिवली वो फील ही नहीं होगा. ऐसा है. रिलेटिवली फील नहीं होगा. अभी कहाँ फील हो रहा है तेरे को? द अर्थ इज स्पिनिंग क्वाइट फास्ट ऑन इट्स एक्सिस, राइट? अंडरस्टूड सर. बट नोबडी इवन फील्स दैट, राइट? तो वही चीज है, वो रिलेटिव में फील नहीं होगा, लेकिन जो सूडो है वो तुम सबको प्रेस कर रहा होगा. तो एक्चुअली ये स्ट्रेंज सा ग्रेविटी है जो एक पॉइंट से अवे पॉइंट करता है. Unlike the gravity here, which is pointing towards one surface, which then becomes the floor, this kind of gravity will push radially away so that the entire circumference is the floor. You could actually start walking. I think उस movie में था वो 2001 Space Odyssey में. They had a huge spacecraft and they had a cylindrical section, and they would just walk, and by walking you could actually come back to where you started from. I mean, तो वो jogging करने जाता था उसमें ऐसे करके. So अब इसमें और भी issues हैं बहुत सारे इसको as a proper design बनाने में. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इसका रेडियस जो है बहुत मैसिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इतना सा है
कि तुम्हारा सर यहाँ पे है और तुम्हारे पैर यहाँ पे हैं, तो ट्रबल है, बिकॉज व्हाट यू विल सी हियर इज दैट दिस, while it is a kind of gravity, it is not like this gravity. It is a gravity dependent on distance from the center, because इस फ्रेम की जो एक्सेलरेशन होती है वो ओमेगा स्क्वायर आर होती है. तो एक्चुअली सेंटर के पास कोई ग्रेविटी नहीं है और पैरों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है. So this experience is actually like being pulled into a black hole, maybe. I mean, away from a black hole. The gravity variation within your height is quite significant. Now that might also have some negative effects on your body. You might get differently pushed, pulled and pushed, right? So वही हम यहाँ देखने वाले हैं. तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को इसमें प्रेशर वेरिएशन निकालनी है, राइट? बट मुझे फाइंड करना है प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ आर, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. और आई गेस अब ये बताने की जरूरत नहीं कि प्रेशर क्यों आर के साथ वेरी कर रहा है. जब प्रेशर डेप्थ के साथ वेरी करता है तो अब डेप्थ यही है, यही डेप्थ है, क्योंकि ग्रेविटी ऐसे है और अदर सूडो ग्रेविटी ऐसे. तो वेरिएशन निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आर डिस्टेंस पे जाके मैं एक डी आर विड्थ का छोटा सा टैबलेट ऑफ वाटर कंसिडर कर रहा हूँ. पहले तुम लोग ये बताओ मेरे को कि इसके लेफ्ट फेस पे ज्यादा प्रेशर है, इसके राइट फेस पे ज्यादा प्रेशर है? राइट पे. राइट फेस पे, क्योंकि प्रेशर तुम कह ही रहे हो डेप्थ के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका राइट फेस ज्यादा डीपर है सोटू से. या दूसरे तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि इधर प्रेशर, क्योंकि ये कैसा चल रहा है, इसका एक्चुअल मोशन क्या है, एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, ये जो टैबलेट ऑफ वाटर है ये सर्कल में जा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है अभी इस वक्त? फ्रॉम द ग्राउंड सेंटर की तरफ से. करेक्ट, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम द एक्सेलरेशन ऑफ दिस tablet of water is to the left, therefore the net force on this tablet of water must be to the left, therefore the pressure on the right must be bigger than the pressure on the left to provide a net force to the left. Yes sir. Are you all clear on this? सबको समझा? Yes sir. एक चीज यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ, slightly tangent point, but this should also be clear for all of you guys, because this is sometimes it might show up, especially when you study properties of matter. ये कंप्रेसिव सिस्टम है, प्रेशर एक कंप्रेसिव फोर्स है. एक टेंसाइल सिस्टम अगर तुम लेते हो, मान लो एक रॉड ले लिया तुमने, ठीक है, दिस इज नॉट अ लिक्विड, दिस इज अ सॉलिड रॉड, और ये इस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है, और इसमें भी मैं अगर आर पे जाके एक टैबलेट ऑफ सॉलिड वुड ले लिया, इसमें टेंशन है टीटीटी, इसमें प्रेशर है पीपीपी, वेरिएशन है प्रेशर की, इसमें वेरिएशन है टेंशन की. इसके लेफ्ट साइड पे टेंशन ज्यादा है कि राइट साइड पे टेंशन ज्यादा है? लेफ्ट. इसके लेफ्ट साइड पे टेंशन ज्यादा है, बिकॉज टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स. जा तो ये भी सर्कल में रहा है, एक्सेलरेशन तो इसको भी लेफ्ट की तरफ चाहिए, लेकिन टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, देयरफॉर इसके लिए इधर का टेंशन T प्लस dt होना चाहिए और इधर का T होना चाहिए, ताकि डिफरेंस इधर आए. जबकि ये टैबलेट ऑफ वाटर के लिए प्रेशर लग रहा है, और प्रेशर इज अ कंप्रेसिव फोर्स, ये प्रेशर ज्यादा होना चाहिए P प्लस dP, और ये थोड़ा कम होना चाहिए P, ताकि नेट फोर्स इस तरफ आए. Did you understand the difference in these two cases? This is a tensile force, this is a compressive force, and therefore this must increase with distance and this must decrease with distance. Tension इसमें max यहाँ पर होगा. Correct? All of you clear? Yes sir. So now सर बट एक्सेलरेशन इनवर्ट्स है तो फ्लूइड को दोनों ही केस में एक्सेलरेशन इस तरफ है. एक्सेलरेशन इसका भी इधर है, इसका भी इधर है. डिफरेंस है कि वो एक्सेलरेशन तुम प्रोड्यूस कर रहे हो बाय पुशिंग फ्रॉम टू साइड्स या पुलिंग फ्रॉम टू साइड्स. अगर तुम सीधा जाना चाहते हो तो चाहे दोनों, ये ऊपर से तुम देख रहे हो एक चीज सीधा जा रहा है, तो अगर चाहे तुम दोनों तरफ से पुश करो या पुल करो, अगर तुम चाहते हो वो सीधा जाए तो पुश इक्वल होने चाहिए और पुल भी इक्वल होने चाहिए. अगर तुम सीधा नहीं जाना चाहते हो, राइट की तरफ कर्व करना चाहते हो, और दोनों तरफ से लोग तुम्हें शोल्डर से पुश कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा है तुमको राइट कर्व कराने का, तो लेफ्ट वाले बंदे का शोल्डर पुश स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. लेकिन अगर तुम सीधे जा रहे हो और लोग तुम्हारे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं और फिर भी तुम्हें राइट कर्व कराना है, तो राइट वाले का हाथ का पुल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू पुलिंग and you wanting to curve to the right, the pull from the inside must exceed the pull from the outside.
But if you are again going to curve right, and it's as a result of two pushes, the push from the outside must exceed the push from the inside to again curve you that way. Is it clear to all of you? तो ये डिफरेंस ध्यान रखो, क्योंकि ये वाला चीज भी तुम लोग देखोगे आगे. सिचुएशन वेरिएबल टेंशन इन अ रॉड एंड देन फाइंड व्हाटएवर थिंग. टेंसाइल फोर्सेस के केस में अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो अंदर वाला टेंशन बाहर वाले टेंशन से बड़ा होना चाहिए टू पुल इट इनसाइड. और कंप्रेसिव फोर्सेस के केस में बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए टू पुश इट इनसाइड. दोनों ही केसेस में अंदर की तरफ पुश करना है, जनरेट अंदर की तरफ फोर्स जनरेट करनी है. बट इफ एज अ रिजल्ट ऑफ पुश, देन द आउटर पुश मस्ट एक्सीड द इनर पुश. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सिचुएशन. अब मैं लिख सकता हूं, अब इसकी न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे. फॉर द टैबलेट ऑफ वाटर. और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, ट्यूब का मान लो ए है. और लिक्विड का डेंसिटी अगेन अज्यूम कर रहे हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो उसकी डेंसिटी थ्रू आउट सेम है रो. तो बताओ तुम लोग क्या लिखना चाहिए मेरे को न्यूटन सेकंड लॉ इसका. नेट फोर्स क्या है इस पे? A into D. P plus dP into A is the inward force minus P into A is the outward force equals to mass times acceleration. मास कितना है इसका? डेंसिटी into वॉल्यूम. dr है ना इसका लेंथ, ऐसे इसका वॉल्यूम है ADR. और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका सेंटर की तरफ, तुम लोग बताओ. अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और r डिस्टेंस पर है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पीस? Omega square r. ये लिखा हुआ है मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ये लिखा है नेट फोर्स. ठीक है, सबको समझा? तो देयरफॉर मेरे पास बन गया, ए कैंसिल हो जाएगा, पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो dp इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर r dr. ADP. नहीं, ए कैंसिल हो गया इधर से, दोनों साइड है ए. ठीक है, क्लियर? ये एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट था, तो मैं इसको अलग कर देता हूँ इससे. सॉलिड रॉड का केस डिफरेंट होता है और ये सब अलग कहानी है. अब तुम लोग इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो. और मैंने बताया था तुमको पहले भी, तो वो यहाँ पे भी ध्यान रखना है. जब भी तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, सम डी ऑफ समथिंग एंड डी ऑफ समथिंग, तो बिफोर यू इंटीग्रेट यू मस्ट चेक कि क्या माइनस साइन लगाने की जरूरत तो नहीं है. यानी आर बढ़ने से क्या पी बढ़ रहा है या कम हो रहा है. अगर आर के बढ़ने से पी कम हो रहा होता तो एक माइनस साइन और लगाना पड़ता है यहाँ पर. डू यू गाइस रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस बिफोर? Yes, sir. क्या इस केस में लगाना है हमको? आर के बढ़ने से क्या पी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है. पी बढ़ रहा है, इसलिए डीपी बाई डी आर पॉजिटिव है, तो कोई माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं. इस वाले केस में जब तुम्हारा ऐसा इक्वेशन बन जाता है, उसमें dt लिखा होता है यहाँ पे, डी टेंशन, और इधर ऐसा ही लिखा होता. उसमें क्योंकि r के साथ टेंशन कम हो रही है, लाइक आई टोल्ड यू, हमेशा हर पीस के लेफ्ट पर उसके राइट से ज्यादा टेंशन होती है. तो पीस बाय पीस इधर ज्यादा टेंशन है, उधर कम टेंशन है. तो इसका जब तुम ऐसा इक्वेशन बनाते तो उसमें एक माइनस साइन लगाना पड़ता, नहीं तो गलत आंसर आ जाता. इस केस में जरूरत नहीं है, तो बस इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली, और मेरे पास प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ r आ जाएगा. अब एक तो नोन वैल्यू होनी चाहिए, तो किसी r पे मुझे पता होना चाहिए कि प्रेशर कितना है लिक्विड का. अब तो मान लो कि जहां से लिक्विड चालू हो रहा है वो डिस्टेंस कोई नोन डिस्टेंस है, ये एक r नॉट है. लिक्विड के अंदर लिख रहे हैं ना हम इक्वेशन,
तो क्या आर नॉट पे प्रेशर की वैल्यू पता है मेरे को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P naught. वो पी नॉट है, यहाँ तो सारा पी नॉट P0, प्रेशर yes, है टिल यहाँ, और अंदर बढ़ रहा है फिर वो। तो ये लिमिट में लोअर लिमिट डाल सकता हूँ कि भाई आर नॉट पे पी नॉट प्रेशर है तो किसी आर पे पी प्रेशर होगा जनरल। तो आर नॉट पे पी नॉट प्रेशर है तो एक जनरल आर पे जनरल पी प्रेशर होगा। ये हो जाएगा पी माइनस पी नॉट, और ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। देयरफॉर P as a function of R is whatever is the starting pressure plus rho omega square by 2 R square plus R naught square. Is this clear to all of you? Sir, why can't Yes, we integrate R dr from 0 to R? You can. अब अगर मान ले कि ये लिक्विड यहां तक भरा होता, वो तो अब तुम प्रॉब्लम के हिसाब से देख लेना, मैंने तो एक जेनरिक निकाल दिया है। अगर तेरा लिक्विड यहां से चालू होता है तो आर नॉट की वैल्यू 0 है, तो 0 डाल देना यहाँ पर। Sir, but even at R is equal to 0, P naught is also 0, right here. Even at Sorry. R equal to, हाँ, I agree. Even at R equal to 0, P is P naught, but that is not the part of the liquid. जो इक्वेशन लिखा है वो लिक्विड के लिए लिखा हुआ है, तो लिक्विड के ही प्रेशर्स की लिमिट लगानी पड़ेगी ना। Okay, sir. यहाँ लिक्विड नहीं है, ये पार्ट का एनालिसिस नहीं किया हुआ है ये। तो यहाँ पे तो R0 से लेकर R0 तक हर जगह P नॉट है, लेकिन वो लिक्विड का पार्ट नहीं है, तो वो लिमिट, ये इक्वेशन लिक्विड के लिए लिखा हुआ है। तो पहली बार जहाँ लिक्विड है वो R0 डिस्टेंस पर है, ठीक है? सबको समझ में आ गया यहाँ तक सो फार? अब अगेन लाइक आई सेड, since it always helps to be able to relate whatever you have found to something which you already understand, हमने in fact use किया our understanding of gravity which increases pressure to in this case pseudo increasing pressure. तो ये जो result है, instead of looking at it as some new kind of a result, simply look at it as P equals to P naught plus rho g h. P naught plus, except instead of rho g h, which was a linear increase of pressure, what you have is a quadratic increase of pressure. And can you tell me why there is a quadratic increase of pressure? The acceleration is linearly increasing. Correct, exactly. Because linear increase of pressure कब होता था? जब gravity uniform होता था। यूनिफॉर्म G में प्रेशर डेप्थ के साथ लीनियरली इंक्रीज करता था, लेकिन ये अगर ग्रेविटी है, अगर ये सूडो ग्रेविटी जैसा है, तो ये यूनिफॉर्म सूडो नहीं है, ये यूनिफॉर्म ग्रेविटी जैसा नहीं है। इसकी वैल्यू यहाँ पे कम है और बढ़ रही है, ये ओमेगा स्क्वायर आर है। द रोल ऑफ G is being played by omega square r, which is already linear in r. अगर तुम इसको कांस्टेंट G डाल देते तो ये रो जी एच बन जाता, आर आ जाता बस एक रो जी आर या व्हाटएवर। तो कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है, जो कि हम यूनिफॉर्म ग्रेविटी में मान रहे होते हैं, तो प्रेशर लीनियरली बढ़ता है। अगर खुद एक्सेलरेशन या ग्रेविटी लीनियर इन आर है तो प्रेशर क्वाड्रेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि एक इंटीग्रल हो जाएगा उसके ऊपर। यानी इस ट्यूब में प्रेशर की वेरिएशन जो है अगर प्लॉट करी जाएगी, तो मैं अगर उसको ऐसे दिखाऊं, तो यहां पे ऑलरेडी पी नॉट प्रेशर है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कमिंग एज अ स्ट्रेट लाइन आई हैव अ पैराबोला। ये ड्राइंग समझ में आया तुम लोगों को? That is the meaning of a quadratic increase of pressure. This is that parabola. Pressure as a function of depth, by depth I mean to say when you look at it like this, is not a linearly increasing pressure but a quadratically increasing pressure. ठीक है, समझा? ओके, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स में? एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये ट्यूब है,
और इसमें लिक्विड है वही अपना स्टार्टिंग कंडीशन एज यूजुअल एल एल क्वेश्चन ये है कि मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट एक सर्टेन ओमेगा पे स्पिन करना चाहता हूं, ठीक है, पूरा चीज घूमेगा इस आर्म के अबाउट। एट व्हाट ओमेगा must the tube be spun so that no liquid remains in the left arm? क्वेश्चन समझ गए तुम लोग? इतना तेज घुमाना है, समझ ही रहे हो तुम? घूमने से क्या हो रहा है, एक टाइप का ग्रेविटी उधर क्रिएट हो रहा है। रियल ग्रेविटी तो है ही नीचे, एक और ग्रेविटी उधर क्रिएट हो रहा है। तो वो लिक्विड को जैसे रियल ग्रेविटी इसको नीचे कर रहा है, वैसे वो वाला ग्रेविटी इसको उधर पुश करेगा। इतना फास्ट घुमाओ कि वो ग्रेविटी इतना स्ट्रांग हो जाए कि ये लिक्विड पूरा इधर को छोड़ के इधर आ जाए, मतलब ये खाली हो जाना चाहिए। तो पहले तो तुम लोग इसका ड्राइंग बनाओ कि ये कैसा दिखता होगा जब ये उस ओमेगा पे होगा, कि ऐसा हो गया होगा। जब वो ड्राइंग बन जाएगी तो लॉजिक वही है कि कोई पॉइंट पिक करो और उस जगह का प्रेशर एक बार वर्टिकल लिखो, एक बार हॉरिजॉन्टल लिखो और इक्वेट कर दो। द ओनली डिफरेंस दैट इज गोइंग टू अराइव is that when you are going to write the pressure horizontally, you are going to be using this equation. Is it clear to all of you what you are supposed to do here? But there is no gravity. नहीं, there is gravity of course, because without gravity तो किसी भी ओमेगा से घुमाने से उधर चला जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रियल ग्रेविटी इसको ऐसे रखना चाहता है दोनों में बराबर, सूडो उसको उधर ज्यादा करना चाहता है, तो इतना हो जाए कि वो ऐसा कर दे। Sir, do we send chats on host or co-host? Send to co-host. परिजात रुक जाओ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि तुमने क्या निकाला आंसर। हाँ परिजात करेक्ट है, स्नेह गलत है, पिनाक करेक्ट है, लेकिन एल जी उल्टा हो गया, रेशियो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, जी ऊपर होएगा। पारिन करेक्ट है, रिदम करेक्ट है, अर्नव करेक्ट है A50, कुने गलत है, श्रेया करेक्ट है, तनय करेक्ट है, प्रणव बंसल गलत है, तंजील करेक्ट है, मुक्ता करेक्ट है, पिनाक करेक्ट है। इसके दो पार्ट कर लेते हैं सो दैट यू गेट गुड प्रैक्टिस इन अप्लाइंग दिस। पार्ट ए जो है ये है और पार्ट ये है बी है, सो दैट
अब इतना तेज घुमाना है कि बॉटम वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट भी आधा खाली हो जाए, इतना ड्राइव अवे कर देना है लिक्विड को. यू हैव टू स्पिन इट सो फास्ट दैट यू ड्राइव अवे द लिक्विड सो फार दैट इवन द हॉरिजॉन्टल इज हाफ एम्प्टीड. ठीक है, तो जो लोगों का ए करेक्ट आ गया वो बी अटेम्प्ट कर लो और लिख देना जब भी तुम में से कोई आंसर करे अभी तो ए भी कर देना आगे उसके. चिन्मय हर्षित करेक्ट, अन्वय एल मिसिंग है, मिराज करेक्ट, क्षितिज करेक्ट, मिताली करेक्ट, सिद्धांत करेक्ट, हर्षित करेक्ट. हाँ रुक जाओ मैं देख लेता हूँ बी पार्ट का आंसर भी क्या होना चाहिए. One second. नहीं मुक्ता करेक्ट नहीं, बी का आंसर. क्षितिज करेक्ट है बी का आंसर. चिन्मय बी का आंसर करेक्ट है. तंजील बी का आंसर करेक्ट है. श्रेया बी गलत है. परिजात बी गलत है. कुने ए करेक्ट है. हर्षित बी गलत है. वरुण ए करेक्ट है. कुने मिताली बी गलत है. पिनाक बी गलत है. अर्नव बी करेक्ट है A50. अभिजीत ए करेक्ट है. स्नेह करेक्ट है अगर ये एक आंसर था तो. रिदम बी गलत है. A50 अर्नव करेक्ट आंसर है. रिदम बी गलत है. परिन बी करेक्ट है. सिद्धांत बी करेक्ट है. स्नेह बी गलत है. अनवय बी गलत है. बी में जिसका भी 6 आ रहा है ना वो गलत है, और तुम लोगों का 6 आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड क्यों आ रहा है, लेकिन वो गलत है. नहीं विनायक G/12 नहीं होगा, देखो ए का. हर्षित बी करेक्ट है. चिन्मय बी करेक्ट है लेकिन एल और जी स्विच हो गया तेरा. जी ऊपर होता है हमेशा ओमेगा में डायमेंशनली. श्रेया पी नॉट की जरूरत नहीं है एक्चुअली, तुम पी नॉट ले भी लो ना दोनों तरफ आ जाएगा वो. जब तुम यहाँ से लिखोगे तो भी उसमें प्लस पी नॉट होगा, और जब यहाँ से लिखोगे तो भी उसमें पी नॉट होगा, वो कैंसिल ही होना है. तो वेदर देयर इज एटमॉस्फेयर और नो एटमॉस्फेयर और एनी एटमॉस्फेयर always cancels out. It has no bearing on the final outcome. मुक्ता बी करेक्ट है. मिराज बी करेक्ट है. कुने बी करेक्ट है. प्रांजलि बी करेक्ट, एक सेकंड, प्रांजलि ए करेक्ट है. चिन्मय बी करेक्ट है, हाँ बोला ही मैंने. हर्षित बी करेक्ट है. तनय बी करेक्ट है. अभिजीत बी करेक्ट है. स्नेह पता स्नेह किसका आंसर है, ए या बी का, जो लिखा है अभी तूने जस्ट. विनायक तू भी लिख ए या बी का आंसर. व्हेन यू राइटिंग द आंसर जस्ट राइट ए और बी इन फ्रंट ऑफ इट. हाँ विनायक ए का करेक्ट है. अरे वन सेकंड गाइस. स्ने बी करेक्ट है. अनवय बी करेक्ट है. रिदम बी करेक्ट है. वरुण सावंत बी करेक्ट है.
हाँ सौरभ, मैं करता हूँ सॉल्व ए पार्ट। श्रेया बी करेक्ट है। ए पार्ट सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। तो पहले इसका ड्राइंग बना लेते हैं, कैसा दिखेगा वो। हाँ तेजस बी कर लो, अभी ए सॉल्व कर रहा हूँ केवल। प्रांजलि बी करेक्ट है। तो इन सब प्रॉब्लम से पहले ड्राइंग बना लेना चाहिए। जो हो गया है उसका क्या हो गया है कि ये पूरा खाली हो गया है, और अगर ये पूरा खाली हो गया है, जस्ट ये पूरा खाली हुआ है, इतना चाहिए था बस मेरे को। और फास्ट घुमाएंगे तो ये भी खाली होने लग जाएगा, लिक्विड और ड्राइव अवे हो जाएगा। तो मेरे को बस इतना खाली करना है, तो यहाँ पे पूरे में लिक्विड है और यहाँ पे पूरे में लिक्विड है। और क्योंकि टोटल लेंथ लिक्विड का कंजर्व्ड है, तो ये 2L था और ये भी 2L है, इधर का L उधर आ गया एक तरीके से। मिताली करेक्ट है, बी का आंसर। विनायक बी पार्ट गलत है तेरा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, यहाँ पे मैं प्रेशर इक्वेट कर दूंगा। भले ही बाहर P नॉट हो इधर से और इधर से, वो एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इक्वेटिंग प्रेशर एट P via 2 different paths। ठीक है, हमारा ट्यूब जो है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो उधर से मैं लिखूंगा वर्टिकली, तो क्या लिखूंगा, P नॉट प्लस रो जी इंटू 2L। नीचे आ गए। और इधर से जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। क्या है वो चीजें, आर स्क्वायर वो है जहां तुम निकाल रहे हो प्रेशर, और आर नॉट वो है जहां पे तुम्हें पहला प्रेशर पता है, वो डिस्टेंस। और सारे डिस्टेंस रेडियली मेजर हो रहे हैं। से तो करेक्ट है एक आंसर। परिजात बी का करेक्ट है, विनायक बी का करेक्ट है, सिद्धार्थ बी का गलत है, मिताली बी का करेक्ट है, तेजस बी का करेक्ट है। तो आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर लिखना है। आर वो है जहां पे निकाल रहे हैं, वो ये है। पी पे निकाल रहे हैं, कितना दूर है, 2L, तो 2L स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और आर नॉट वो है जहां पे पी नॉट था, तो वो यहाँ पर है, ये 0 पर है। आर नॉट होता है जहां से लिक्विड चालू हो रही है, जिधर का तुम्हें पता है प्रेशर, और आर वो है जहां पे तुम निकाल रहे हो, और सारा डिस्टेंस मेजर हो रहा है एक्सिस से। तो आर इज 2L एंड आर नॉट इज 0 राइट हियर। तो जब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ G/L। दिस इज द ओमेगा एट विच यू मस्ट स्पिन इट so as to completely drive out the liquid in the vertical left arm। हाँ से तू बी का करेक्ट आंसर है तेरा। तो बी भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। काफी लोग का बी भी करेक्ट हो गया। अब आई गेस अब तुम लोगों को मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बी पार्ट के लिए ड्राइंग कैसा दिखेगा, इसके अबाउट स्पिन हो रहा है, ये 2L है और इधर भी 2L हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने गलत कर दिया ये। नहीं ठीक है, इधर अब 3L हो जाएगा और इधर जो है L ही रहेगा लिक्विड। मतलब मेरे को अब आधा करना है, तो इधर लिक्विड है और बाकी 3L लिक्विड इधर है, टोटल तो 4L ही होना चाहिए। लिक्विड तो कंजर्व्ड ही है टोटल। तो अब अगर मैंने आधा और खाली कर दिया है, तो इधर L है और बाकी 3L इधर होगा, टोटल 4L के लिए, राइट। तो फिर से इक्वेटिंग प्रेशर एट पॉइंट P कर दो। एक सेकेंड। Okay, so equating pressure at P via 2 different paths.
इधर से लिखेंगे वर्टिकल तो पी नॉट प्लस रो जी 3L, आगे बॉटम पे, और इधर से लिखेंगे तो पी नॉट कहाँ पर है, यहाँ पर है, लिक्विड जहां से चालू हो रहा है वहां पे पी नॉट है, ये पूरा पी नॉट ही है, लेकिन वो अब जब तुम लिखोगे प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो जहां तुम निकाल रहे हो वो तो एक्सिस से 2L डिस्टेंस पर ही है, 2L ये R होता है, कितना दूरी पर तुम निकाल रहे हो प्रेशर, R, दैट इज 2L, और पी नॉट कहाँ पे था लिक्विड का प्रेशर, वो L पर था, तो माइनस L स्क्वायर, दैट इज द थिंग टू कीप इन माइंड। आर नॉट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर है, आर नॉट है लिक्विड जहां से चालू हो रहा है, radial distance of where the liquid starts from. In this case, the liquid starts from R equals to 0. In this case, the liquid starts from R equals to L. So that's R naught. And R is simply the distance of the point where you are trying to find the pressure. That's 2L in this case, 2L in this case. इसको सॉल्व करोगे तो ज्यादा ओमेगा आएगा as expected, because to drive off the liquid from even the horizontal tube would require you to spin it even faster. अब मैं बोलता कि भाई इतना फास्ट घुमा दो कि कोई लिक्विड इसमें बचे ही नहीं, उसका आंसर बता सकते हो तुम लोग मेरे को? Is it possible to spin the tube fast enough that no liquid remains in the horizontal section? What omega would that require? Not possible. That is not possible. You would require infinite omega, because balancing के लिए दो चीज तो चाहिए ही ना। तुम वर्टिकल एक टावर खड़ा कर रहे हो, उसका प्रेशर है, तो उसको ऑफसेट करने के लिए इधर से कुछ तो लिक्विड होना चाहिए। अगर यहाँ से कुछ भी नहीं है तो इस टावर को तुम कैसे बैलेंस करोगे? That would require an infinite. I mean, I guess you can see that the faster you spin it, the more you can shift the situation this way. But ultimately, to have no liquid in the horizontal segment would require an infinite omega. ठीक है, सबको क्लियर हो गया प्रॉब्लम? ये समझ में आ गया कि कैसे इसको यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन को, इसमें R क्या होता है और R नॉट क्या होता है। I could also say I want to drive the liquid so far that only 1/3 remains. Then R would still be 2L and R naught would be 2/3 the distance from here. ठीक है, so keep that in mind. How to use this rho omega square by 2 R square minus R naught square. All right. And this will lead us directly to an interesting scenario, which is something close to real life. So you're actually going to see an example from reality. उसको उस तक पहुंचने के लिए, to motivate that, let me tell you one other thing. तुम ये देख रहे हो इन सारे केसेस में कि यहाँ पे जब हम प्रेशर इक्वेट कर रहे हैं, तो जब उसको वर्टिकली लिख रहे हैं तो रो जी एच लिख रहे हैं, लीनियर, लेकिन जब हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इन डिस्टेंस लिख रहे हैं। मतलब अगर ये y है और ये x है, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वेट करने का मतलब कि तुम y का लीनियर को x का क्वाड्रेटिक से इक्वेट कर रहे हो। देख रहे हो? Which basically should make you feel like there is a parabola involved somewhere. अब तुम इसको ऐसे कंसिडर करो, ये प्रॉब्लम तो हो गया खत्म। मान लो मेरे पास इस टाइप का एक सिस्टम है, इसमें मान लो सब में LLL तक लिक्विड भरा हुआ है इनिशियली, सेम लेवल। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से राइट को जाएगा तो जो लिक्विड का सरफेस है वो ऐसा टिल्ट होगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा उसमें, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वो इधर भी यूनिफॉर्म ग्रेविटी टाइप बनेगा और इधर भी यूनिफॉर्म ग्रेविटी है। लेकिन अगर इसको इसके अबाउट स्पिन करेंगे, इस आर्म के अबाउट, तो इसमें कुछ हाइट तक होगा, इसमें ज्यादा हाइट तक होगा, इसमें ज्यादा हाइट तक होगा। उनको अगर मैं कनेक्ट करूं तो व्हाट काइंड ऑफ अ कर्व डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड? Linear. No, Parabola. it will be a parabola. It will be a parabola because
लेट्स से मैं इसके अबाउट इसको स्पिन करता हूँ, ठीक है। तुमने अभी क्या देखा, तुमने अभी देखा कि मान लो इतना ही प्रॉब्लम होता तो इसमें जो हाइट होता, और मान लो मैंने ऐसा किया कि इतना फास्ट घुमाया है कि ये पूरा खाली हो गया ट्यूब, राइट। तो लिक्विड यहां से चालू हो रहा है, इस पूरे में लिक्विड है और इनमें लिक्विड्स है। अब तुम जब अगर यहाँ पे प्रेशर इक्वेट करते, इनको जाने दो, केवल कंसिडर द फर्स्ट वन, तो इसमें इतना हाइट होता जो इसके स्क्वायर के बराबर होता। तुम यहाँ पे लिखते स्क्वायर वाला इक्वेशन और यहाँ लिखते y में लीनियर वाला इक्वेशन, ठीक है। मान लो ऐसा कर लो कि ये डिस्टेंसेस जो हैं l हैं सारे के सारे, ये l है, ये भी l है, दो ट्यूब्स, दो कोई से भी दो एडजेसेंट ट्यूब्स में l का सेपरेशन है और ये पूरा खाली हो चुका है। तो इसका l के लिए इसमें जो हाइट होती वो निकाली जा सकती है। तुम यहां से लिखते, इसके इसका प्रेशर यहाँ पे इक्वेट करने के लिए तुम लिखते, ये पॉइंट ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। तो इक्वेटिंग प्रेशर एट ए, मान लो इसमें मैं बोलूं कि इसमें y हाइट तक लिक्विड है, तो इक्वेटिंग प्रेशर एट ए तुम कैसे लिखते, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। इधर से तुम ऊपर से तुम लिखते पी नॉट, अब पी नॉट जाने दो, ठीक है। इस प्रॉब्लम में PATM 0 ले लो क्योंकि वो वैसे भी कटता है, तो मैं ज्यादा जगह बचा रहा हूँ यहाँ पे। y में तुम लिखते रो जी y ओवर a, और यहां से तुम लिखते रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 l स्क्वायर, सिंपली l स्क्वायर माइनस 0, पूरे में लिक्विड है, इस पूरे में लिक्विड है। फॉलोइंग। तो YA कितना हो गया, रो कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू एल स्क्वायर हो गया। अब तुम कर दो जरा सेम लॉजिक एट B, तो क्या इक्वेशन लिखते, रो जी y ओवर b, यानी b के ऊपर कितना टावर होता, इक्वल्स टू इधर क्या लिखते, रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। आर यू फॉलोइंग। तो y ओवर b जो आ जाता वो आ जाता ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू 4l स्क्वायर। सिमिलरली एट C जब लिखते तो YC कितना आ जाता, ओमेगा स्क्वायर बाय 2g 9l स्क्वायर। तो तुम्हें ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जितना दूरी पे ट्यूब है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में उसके ऊपर कॉलम का हाइट है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक पैराबोला है, क्योंकि प्रेशर हॉरिजॉन्टली क्वाड्रेटिकली वेरी कर रहा है और वर्टिकली लीनियरली वेरी कर रहा है। तो किसी भी जगह जाके अगर तुम हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेटिक को वर्टिकल लीनियर से इक्वेट कर दोगे तो पैराबोला ही बनेगा ऑटोमेटिकली। अब मैं तुम्हें उसको डिटेल में दिखा रहा था कि कैसे वो पैराबोलिक बन रहा है। अब तुम इमेजिन करो कि इंस्टेड ऑफ ट्यूब, 3 ट्यूब्स, इनके बीच में भी ट्यूब्स हैं, यहाँ पर भी ट्यूब है, यहाँ पर भी ट्यूब है, यहाँ पर भी ट्यूब है। तो ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं कि उस वाले में यहाँ तक होगा और उस वाले में यहाँ तक होगा। और अब मान लो उनके बीच में भी ट्यूब्स हैं, तो बेसिकली पैराबोला तो बन ही गया है। यानी एक जनरल, अब इतने ट्यूब्स लगा दो कि ग्लास खत्म ही हो जाए, पूरा एक कंटेनर बन जाए। तुम लोग समझ गए, पूरा कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो पूरा कंटेनर अगर घूम रहा है तो एक्चुअली पूरा लिक्विड का सरफेस ही पैराबोला का शेप लेगा। जैसे नॉर्मल लीनियर ट्रांसलेशन में पूरा सरफेस ही स्लोप हो जाता था, तुम इंडिविजुअली कैपिलरीज में भी कर सकते थे कि ऐसे है, लेकिन अगर पूरा कनेक्टेड लिक्विड है तो स्लोप हो गया स्ट्रेट। तो पूरा कंटेनर अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें पूरा लिक्विड का ओवरऑल सरफेस ही पैराबोला हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब instead of rotating it about an end, what I will do is, which is the more common looking scenario, is that I am going to rotate it about the middle of the container. यानी axis cylindrical container है और उसकी central axis के about ही अगर liquid rotate करेगा, गंदा सा बन गया मगर कोई बात नहीं, तो liquid का जो shape होगा वो एक symmetric parabola होगा. In fact, not a parabola, but what is called a paraboloid.
It's a parabola in 3D. That's called a paraboloid. ये जो oid suffix होता है ये 2D shapes पे लगता है to make it into a 3D. अगर तुम एक ellipse लेते हो और ellipse को अपने body axis के about 3D में rotate कर दो और अगर वो अपने आप को rotate करते करते print करता हुआ जाए, ठीक है, हाँ ओम मैं छोड़ दूंगा, पहले 130 पे छोड़ दूंगा, अगर वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करे एलिप्स और एज इट रोटेट्स इट प्रिंट्स इटसेल्फ एवरीवेयर, देन यू विल गेट एन egg shaped object that is called an ellipsoid. Similarly, if you have a parabola which is a 2D curve like this, but if you take it and rotate it about its body axis and as it rotates it prints itself out, then you will get a parabolic bowl which is called a paraboloid. ऐसी हाइपरबोलॉइड भी होता है, एलिप्सॉइड भी होता है, पैराबोलॉइड भी होता है, सर्कुलॉइड नहीं होता. सर्कल को लेके 3D में रोटेट कर दो तो वो सर्कुलॉइड होना चाहिए, बट वी हैव अ मोर कॉमन नेम फॉर इट, इट्स कॉल्ड अ स्फीयर, राइट. तो पैराबोलॉइड बनेगा और लिक्विड ये है सारा का सारा. ये जो ऊपर मैंने सर्कल बनाया ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलती से बन गया, जस्ट टू गिव यू द सेंस ऑफ 3D. द लिक्विड इज हेयर. ये तो तुमने देखा ही है जब चाय में चीनी डाल के उसको घुमाते हैं या जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के उसको चलाते हैं. किसी भी लिक्विड में अगर तुम सेंट्रल एक्सिस के अबाउट लिक्विड को स्पिन कर दोगे तो लिक्विड जो है साइड्स पे चढ़ जाएगा और बीच में उसमें डिप्रेशन आ जाएगा, एंड दैट्स अ पैराबोलॉइड. ऑफ कोर्स रियलिस्टिक चाय या रियलिस्टिक पानी एग्जैक्टली पैराबोलॉइडल नहीं होगा फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, प्राइमरीली बीइंग दैट इट इज नॉट एन आइडियल लिक्विड, इट हैज surface tension and viscosity, so those forces come into play and make it deviate from the perfect paraboloidal shape. But if you assume an idealized liquid which has no long range forces, then you do get the perfect paraboloidal shape. And as long as it is spinning at this omega, this paraboloidal shape will be preserved. अब अगर तुम इस ओमेगा को कम कर दोगे तो क्या होना चाहिए इस पैराबोलॉइड के साथ? डेप्थ कम हो जाएगी. हाँ, थोड़ा सा इधर से नीचे आ जाएगा और थोड़ा बीच में से ऊपर हो जाएगा. It will still be a paraboloid, but it will be a relatively shallower paraboloid at a lesser omega. At an even lesser omega, it will be an even shallower paraboloid. At 0 omega, it will be flat. On the other hand, if you increase the omega, you'll make it into an even more degenerate paraboloid. ज़्यादा walls पे चढ़ जाएगा, नीचे से खाली हो जाएगा. इतना भी फास्ट घुमा सकते हो कि पैराबोलॉइड का एपेक्स बॉटम को टच करे. इतना फास्ट घुमा सकते हो कि वो खाली जगह भी छोड़ दे वहां पर. डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द कंटेनर इतना ओमेगा हो सकता है कि साइड से स्पिल करने लग जाए. ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज स्टर योर टी फास्ट इनफ दैट द टी स्टार्ट्स टू स्पिल आउट, राइट. So depending on the omega, the paraboloid will change its structure relative to the axis. Correct? Make sense? The thing is, knowing that कि हम horizontal में pressure लिख सकते हैं और vertical में pressure लिख सकते हैं, हम इस paraboloid की equation भी find कर सकते हैं. In fact, हम वो करने वाले हैं, equation find कर सकते हैं और फिर हम once we have the equation, we can answer problems like if I know the height of the container and I know how much water was in there, how fast should I spin it so as to make it spill from the edges? Or how fast must I spin it so as to expose the bottom of the container? Those questions can be answered if you know the equation of this paraboloid, which is what we'll find next. Okay. मैं इसमें कम ओमेगा वाला भी बना देता हूँ और ज़्यादा ओमेगा वाला. ज़्यादा ओमेगा वाला ज़्यादा ऊपर से आएगा और ज़्यादा नीचे से जाएगा. ठीक है. तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वो भी है तेजस. ऑफ कोर्स परफेक्टली यूनिफॉर्म ओमेगा मैनुअली हम कर भी नहीं पाते. हमारे हाथ से जो चाय घुमाने का प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो अल्फा आ जाता है उसमें. इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म ओमेगा, इसलिए वो एक एवर चेंजिंग पैराबोलॉइड बनता है इन टाइम. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर डिसिपेटिव फोर्सेस, विस्कोसिटी इज देयर. सो वंस इट यू सेट इट मूविंग, इट डजंट मेंटेन because it has, as the liquid, as the chai turns against the walls of the cup, there is friction there, and so this it slows down. And as it slows down, as its omega decreases, it then, from being a very steep paraboloid, it then starts to become a more flatter paraboloid, and ultimately it stops and you have a flat surface, right? So the faster you go, the more you make it like this, and then it slows down and becomes like that, right? इसकी equation find कर सकते हैं. equation find करने के लिए हम क्या करेंगे,
इक्वेशन किसी भी कर्व के लिखने के लिए पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, उसी के रिलेटिव इक्वेशन होती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि लेट्स से हाँ, a vortex, as long as you are considering gravity downwards and a rotatory effect, a vortex is essentially like a paraboloid. Or any vortex formed in a liquid when the liquid drains. The only difference then is usually vortexes are formed when the liquid is also draining, and that creates a flow in the liquid, which is not here in this case. So then it is not a perfect paraboloid. There is a deviation from the paraboloidal structure, क्योंकि पानी ऐसे घूमते घूमते निकल भी रहा है, तो पैराबोलॉइड शेप पे फिर स्पाइरलिंग फॉर्म्स भी आ जाते हैं, because there is a directionality also. The water is spiraling into the drain while being a paraboloidal shape. It's a perfect paraboloid when the water is not draining, right? तो इसको इक्वेशन लिखने के लिए let me quickly do it, then we'll end the lecture. I will take a 2D view of the picture. ये कंटेनर है और कंटेनर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले लेते हैं। फिलहाल के लिए कंटेनर इनफाइनाइटली टॉल अज्यूम कर लो। अभी मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऊपर से स्पिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इनिशियली मान लो कि इस कंटेनर में जो पानी था वो था h हाइट तक, ठीक है, और बॉटम का रेडियस r है, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो है पानी का वो है पाई r स्क्वायर h। अगर पानी स्पिल आउट नहीं कर रहा है तो लेटर ये ऐसा भी दिखता होगा, लेकिन नीचे सारा वॉल्यूम जो है इतना ही होना चाहिए, वॉल्यूम तो कंजर्व्ड ही रहना चाहिए। तो ये भी एक इक्वेशन रहेगी हमारी, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, सो विल बी यूजिंग दैट आल्सो। अब जो है मान लेते हैं कि एक सर्टेन ओमेगा पे घूम रहा है अबाउट द बॉडी एक्सिस, एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट इसमें जो है ये आ गया है, स्पिन आ गई है, पैराबोला बन गया। तो पहले मैं एक्सिस बनाता हूँ, एक एक्सिस बनाता हूँ सीधी, और ये तुम्हारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी, और जो पैराबोलॉइड है वो इस पे ऐसे बन रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक तो बनेगा ये, अगर कंटेनर सिमेट्रिक है तुम बीच के अबाउट घुमा रहे हो, थोड़ा गंदा पैराबोलॉइड है बट ठीक है, वी लिव विद दैट। ऐसा नहीं बनना चाहिए नोक जैसा, बट ठीक है, इट्स ओके। सो अब इसमें कुछ चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बी क्लियर ऑन द फैक्ट दैट द एक्चुअल वाटर इज अंडर द पैराबोलॉइड, राइट। तो ये वो वॉल्यूम है जो कंजर्व्ड है, ये इतना ही होना चाहिए। पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो पहले वो सिलिंड्रिकल शेप में था, अब वो पैराबोलॉइडल के नीचे वाला शेप में है, लेकिन है तो टोटल वॉल्यूम उतना ही। तो ये भी एक इक्वेशन होगा जो हम लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो हाइट है जहां तक एपेक्स नीचे पहुंच गया है, लेट अस कॉल दैट एच मिन, और एपेक्स जहां तक टॉप पे पहुंच गया है, सॉरी पैराबोलॉइड का टॉप जहां तक पहुंच गया है दोनों साइड से, लेट अस कॉल दैट एच मैक्स, ठीक है। ये दोनों चीजें ओमेगा पे डिपेंड करती हैं, हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये सिंबल्स हैं इनके, बाकी सब फिक्स्ड है, रेडियस वेडियस सब फिक्स्ड है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि इसकी इक्वेशन को बनाने के लिए मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं बॉटम ऑफ द कंटेनर का मिडिल। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम कहीं भी लगा सकते हो, इट्स सिंपली अ सेट ऑफ एक्सिस, so you can choose the origin as the apex of the paraboloid here. You can also choose it at the bottom of the container, you can also choose it here, all of the, or you can choose it here also. As long as the y-axis lies on the container axis, you will get the same equation plus or minus some constants. तुम लोगों को ये पता है कि अगर कोई फंक्शन की इक्वेशन है fx, तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे उसको शिफ्ट कर दिया जाए ऊपर सिंपली या नीचे, तो प्लस माइनस कांस्टेंट करने से इक्वेशन आ जाती है। तो choosing the coordinate system on the apex of the paraboloid or choosing the coordinate system का origin at the bottom, at the center of the bottom, does not change the equation, it only changes a constant added to the equation. यहाँ पे बनाएंगे तो y equals to something x square equation बनेगी, यहाँ पे बनाएंगे तो y equals to something x square plus h min बनेगी। ये समझा तुमको, क्योंकि h min से ऊपर चला गया है वो।
Yes, sir. The only thing is, I mean, of course, although you are free to put your coordinate system anywhere, you should not really put it somewhere here, because that will produce a parabola equation which will have a number of constants, because it's also shifted in x and x. So it will not have a nice form of the y something x square. It will also have x terms in it. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुमने जब पढ़ा था, दो रूट आते हैं उसके, ax square plus bx plus c का फॉर्म में आ जाएगा वो, अगर origin of coordinates यहाँ पर है. So of course, why would we do that? We are free to choose. So I'm taking the symmetry axis as the y-axis, and then I'm also free to choose the x-axis as wherever I have chosen to put it here. ठीक है? तो ये मेरा origin of coordinates हो गया, ये मेरा x-axis हो गया therefore, और ये मेरा y-axis हो गया therefore. ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? मैं एक रैंडम पॉइंट पे जाऊंगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि यहां से x डिस्टेंस पर है, और उसके ऊपर कॉलम का हाइट जो है वो y है. ये जो पॉइंट है यही है x, y, और इसी का मुझे रिलेशनशिप चाहिए. अगर ये पैराबोला पे लाई करता है तो x और y में रिलेशनशिप चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से वही लॉजिक लगा रहा हूं जो मैं अब तक लगाता हुआ आया हूं इस पूरे चैप्टर में, विच इज इक्वेटिंग pressure at P via the vertical and horizontal. वर्टिकल से वहां प्रेशर मान लो ऊपर जो है कुछ है, जीरो ले लेते हैं, पी नॉट जो है जीरो ले लेते हैं. तो वर्टिकल से लिखेंगे तो कितना प्रेशर हो जाएगा, रो जी वाई. हॉरिजॉन्टल से लिखेंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, और वो तुम्हें पता है रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. लेकिन उसके लिए पहले यहाँ का प्रेशर होता है पी नॉट, लेकिन ये तो पी नॉट नहीं है, ये तो जीरो नहीं है. यहाँ कितना प्रेशर है, ओरिजिन पे कितना प्रेशर है? करेक्ट. Rho g h min is first of all the pressure at the origin, plus you will do the rho omega square by 2 and x square minus 0 square term. Did you all understand why this is here? Yes. This is the pressure at 0, 0, and then you move horizontally to add the pressure, excess pressure due to the rotation. अगर मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिया होता कि ओरिजिन जो है एपेक्स पे आता, तो मुझे जीरो से ही स्टार्ट करके बस सीधे मैं लिख देता, तो फिर ये रो जी एच मिन का टर्म नहीं आता, एक्स ये मिसिंग हो जाता, सीधा पैराबोला ऐसा बन जाता. मेक सेंस? तो बस हो गया. देयरफॉर द इक्वेशन इज, रो जी उड़ा दो, इधर ले आओ नीचे, y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, कॉन्स्टेंट्स हैं ये, एक्स स्क्वायर प्लस एच मिन. दिस इज योर पैराबोला. अगर तुमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लिया होता तो यहाँ का प्रेशर भी जीरो होता, ये टर्म नहीं लिखते, तो इक्वेशन होती सिंपली y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2g एक्स स्क्वायर. ठीक है, अभी इसमें h में और है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया कैसे किया इसको? अभी प्लीज अंडरस्टैंड कि पूरा हुआ नहीं है, मैं भी छोड़ दूंगा क्लास को, तुम लोगों का कुछ कंप्यूटर है, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. प्लीज अंडरस्टैंड, व्हाइल दिस इज द इक्वेशन, h min is as of yet undetermined. सिर्फ अभी उसका नाम लिखा है h min की, जहां तक वो जाएगा. In terms of the actual properties of the situation, which are how much water you had and what are the dimensions of the container, h min is still to be found, h max is still to be found. ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तब ये इक्वेशन फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा. अभी h min एक सॉर्ट ऑफ अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट है, बट अदरवाइज इक्वेशन ये है पैराबोला. ऑलराइट, क्लियर? सर ये आपने लेफ्ट में जो इक्वेट किया, एक बार फिर से समझा सकते हैं? मैंने क्या किया, वही जो हम पिछले प्रॉब्लम्स में कर रहे थे सब में, जिसमें ट्यूब को खाली करना था. हम एक पॉइंट पकड़ते थे जिसमें प्रेशर लिखते थे ऊपर से रो जी वाई, और इधर से लिखते थे पी नॉट, ऊपर से लिखते थे पी नॉट प्लस रो जी वाई, और इधर से लिखते थे पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर. तो यही मैंने यहाँ पे किया, ये पॉइंट पकड़ा बॉटम पे,
इसका प्रेशर वहां से लिखा तो पी नॉट प्लस रो जी वाई, पी नॉट तो 0 है तो रो जी वाई वो ये साइड है, और यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ का P लेना होगा क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है उसमें ये वाला P प्लस रो ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म होता है। ओके सर, हाँ समझा। अब ये P जो है पहले मैंने ऐसे निकाल लिया अपना स्टैंडर्ड तरीके से, 0 प्लस रो जी एच मिन ये मिल गया, और फिर कर दिया प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। यस सर, समझा। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल राइट, सो विल बी एंडिंग इट हियर टुडे। किसी को कोई डाउट है अभी तक इसमें सो फार? नहीं से तो क्लियरली आवाज नहीं आ रहा है, फिर से पूछ। नहीं सर, 2 मिनट रुकना खाली। हाँ हाँ ठीक है, फाइन। हाँ हर्षित, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एच मिन निकालेंगे, एच मैक्स भी निकालेंगे। एच मैक्स एच मिन में एक कंडीशन आएगी जो बेसिकली वॉल्यूम पे बेस्ड है, ये एक फैक्ट है जो अभी यूज नहीं हुआ है सो फार। The H max is when x is equal to L only. हाँ करेक्ट, एच मैक्स इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर, बट ऑफ कोर्स अभी अगर तुम इसमें x की जगह r डाल देते हो तो y एच मैक्स डालने से अभी एक रिलेशन आएगा एच मैक्स और एच मिन में, वो दोनों की वैल्यू नहीं पता चलेगी। Okay. है ना, वो तुम इसमें डाल सकते हो अभी एट x इक्वल टू आर वाई इज इक्वल टू एच मैक्स, तो एक रिलेशन आ गया, और दूसरा वॉल्यूम कंजर्व करके आएगा एच मैक्स एच मिन में, तो वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल में आ जाएंगी, तो एच मैक्स एच मिन दोनों मिल जाएगा। वो मिलने के बाद फिर हम फिजिक्स वाला प्रॉब्लम, अभी केवल मैथमेटिकल एनालिसिस है, उसके बाद कोई फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है कि अच्छा अगर कंटेनर का ये कंटेनर था जिसमें इसकी टोटल हाइट डबल ऑफ पानी है तो कितना फास्ट घुमाए कि पानी निकलने लग जाए, तो तुम फिर आंसर करोगे कि अच्छा तो देन बेसिकली आई शुड सेट एच मैक्स टू whatever 2h, the height of the container, that means the water has started to spill out. Okay. Or if I want the apex to touch the bottom, I should set h min to 0. So what I really need is expressions for h max and h min in terms of omega r h. ठीक है, वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो? हर्षित, हाँ एक सेकेंड, हर्षित वो उसने ऐसे बोला ना कि देख पैराबोला का इक्वेशन है, तू भूल जा कि पानी वानी है कुछ नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म में देख, y एक्सिस x एक्सिस कर्व, एच मैक्स की मतलब क्या है, एच मैक्स का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू r, दैट इज द मीनिंग ऑफ एच मैक्स। हाँ चिन्मय, क्लासेस ओवर गाइस, एनीबॉडी हु वांट्स टू लीव कैन लीव, पीपल हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस कैन स्टे बैक। कौन सा पेज पीछे वाला दिखाना है? हाँ सर। कैन यू से अगेन व्हाट यू टुक एज आर एंड रो? नहीं, आर जो है वो कंटेनर का रेडियस है, सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसमें ये सब हो रहा है, और रो लिक्विड का डेंसिटी है। अच्छा ओके, आर एंड आर नॉट, सॉरी माय बैड। जो पॉइंट जहाँ पे तुम लिख रहे हो ना ये प्रेशर, वो ये है P, वो बॉटम पे है और सेंटर ऑफ द बॉटम से x डिस्टेंस पर है, और उसके ऊपर y कॉलम ऑफ पानी है, तो वो तो y में तो रो जी वाई हो गया, और x में जब हम लिखते हैं रोटेटिंग सिस्टम में जब हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो पहले एक जगह का प्रेशर पता होना चाहिए प्लस कुछ करते हैं रो ओमेगा स्क्वायर, तो पहले उधर का प्रेशर कितना है वो रो जी एच मिन हो गया, वो ये टर्म है। अब उसमें ऐड करना है रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। आर क्या होता है, आर होता है एक्सिस से डिस्टेंस उस जगह का जहां का तुम प्रेशर लिख रहे हो, तो वो तो एक्स ही है, यहीं का लिख रहे हैं, और आर नॉट होता है वो जगह का डिस्टेंस जिसका ये प्रेशर तुमने अभी लिखा है पी नॉट, तो वो तो यहीं का है x इक्वल टू 0। ये वही सिनेरियो है जो इसमें था, ये वाला 2L 0, बस उसमें x है वो और 0 है। ठीक है राइट, ऑलराइट, खत्म करते हैं फिर। एनीबॉडी else has any थैंक यू other? सर। All right.